बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। साहिल, कैसे हैं बेटा? ठीक हैं? So students, alhamdulillah, we have completed up to alhamdulillah veer, Allah ka lakh lakh shukr, all is well, alhamdulillah. Up to rent receivable we have discussed, and alhamdulillah are able to define and knows that why these items exist in the category of assets and why they are in the subcategory that is called current assets. So my dear students, the next item which we see in the room of assets and current asset is merchandise inventory, and the most important is ending. Yes, Mahanur, do you have any question? So merchandise inventory ending. Abir, please would you explain what is merchandise and what is inventory? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, merchandise is the goods we purchase for resale purpose and Excellent, inventory is the stock of merchandise. एक्सीलेंट माय डियर, जज़ाकुमुल्लाह, खुश रहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अबीर ने बहुत बहुत ही समराइज्ड वे में वन लाइन स्टेटमेंट दिया। मर्चेंडाइज आर द गुड्स आर द आइटम्स विच वी परचेज for the intention of resale, and inventory means stock, and stock of what? Stock of merchandise, stock of goods. So my dear students, the goods which we purchase in a large quantity. We purchase it in bulk quantity, so it is not necessary that after completing a particular period, and when we talk about period, the accounting period is up to maximum 1 year. Excellent. So when 1 year completed, when 1 year completes, so at 1 year end we determine the profit or loss of the business. So at that point we need to recognize that how much amount of goods we have in hand, how much of the amount of merchandise not yet sell. So my dear students, the goods which not yet have been sold, which not yet have been sold by us, is still in our business, and these goods will be utilized, these goods will be sold when, Ravia, when we are going to sell these goods could not be sold in this year. These goods, yes, exactly, Maham Nadeem. These goods are going to be sold in future, next accounting period. Excellent, excellent, Mehak. Next year, Aksa Khwaja, next accounting period, next year. Very well said. जबरदस्त, खुश कर देते हैं आप लोग अपने रिप्लाई से. इट मीन्स, अच्छा, तो अली मोहम्मद भाई जरा प्लीज अनम्यूट कीजिए. सो डज इट मीन
that we are going to sell these goods after 2, 3, 4, 5 years? Ali Muhammad, are you there? I said, please unmute your mic. Ji Ali Muhammad, are we going to sell these goods which we have at year end? Are we going to sell these goods after 2, 3, 4, 5 years? No, sir. तो फिर कब बेचेंगे? बताइए अली मोहम्मद, शाबाश, कोशिश करें. Next. जी शाबाश अली मोहम्मद, प्लीज. यानी अगर देखें, आसान कर देता हूं एग्जाम्पल को. अगर हमारे पास दिसंबर 31, 2019 को कुछ गुड्स बच गई, कुछ मर्चेंडाइज बच गई, आसान उर्दू में कहता हूं, कुछ माल बच गया ईयर एंड पर हमारी शॉप में, तो हम इस माल को अब कब बेचेंगे? नेक्स्ट ईयर 2020 में. तो 2020 में हमारी ख्वाहिश तो ये होगी कि बस जनवरी 1 को ही सारा सामान हमारे पास से. अली मोहम्मद, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बेटा. मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मुझे बताइए प्लीज. एग्जैक्टली एमन, बाकी सब लोग कह रहे हैं हमारी ख्वाहिश, हमारी विश तो ये है कि ऑल दीज गुड्स which we have at year end should be sold in the next year first day, but it is impossible that all goods may be sold on the very first day, but there is a probability that these goods are going to be sold out within 1, 2, 3, 4 months. ऐसा ही है ना प्यारे बच्चों? आप खुद बताइए जरा सोचकर, एक शॉपकीपर क्या अपनी दुकान में आने वाले 5 सालों का सामान लाके रख लेगा कि मैं ये 5 सालों में बेचूंगा, 5 सालों में बिकेगा? नहीं, इतना सारा सामान लाके रखेगा तो उसके पास स्पेस भी होना चाहिए. वो इतना ही सामान लाता है अपनी शॉप में जितना कि उसे लगता है कि विद इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ्स में बिक जाएगा. क्या आप एग्री करते हैं? एग्जैक्टली एमन, एक्सपायर भी हो सकता है, बारिश की वजह से खराब भी हो सकता है, ऑब्सलीट भी हो सकता है, आउटडेटेड भी हो सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना. ठीक है, देखें, आप अपने घर में ग्रोसरी जो करके लेकर आते हैं, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल ऑफ यू एंड योर पेरेंट्स आर अल्हम्दुलिल्लाह एबल टू बाय the grocery and the goods which you use in your household items as household items. Alhamdulillah, all of you can purchase for a year, but you do not. Why? Because you know that these goods exactly रिजा खराब हो जाती है ना मेरा बच्चा. तो हम क्या करते हैं, हम उतनी ही खरीद के लाते हैं जितना कि हमें लगता है कि हम विद इन स्पेसिफिक टाइम यूज कर लेंगे. बस अल्हम्दुलिल्लाह, जब कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों को समझ आ गया तो आई शुड मूव कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो ईयर एंड पर बचती है, दैट मींस वी आर गोइंग टू सेल दीज गुड्स इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. दीज गुड्स आर गोइंग टू गिव अस, these goods are going to give us, complete my sentence, these goods are going to give us immediately. Goods cannot provide profit and cash. Ravia Homer use very well word. Samra, my voice is alhamdulillah clear to all students. I think there is an issue in your internet connection. Yes, the Ali Muhammad, thank you so much. Talal, thank you. These goods are going to give us benefit. These goods are going to provide benefit to our business. And how these goods are going to provide benefit? By selling these goods, we will be able to operate our business. Right? Getting my point? How these goods are going to provide benefit to our business? By selling these goods, we will be able to operate our business. Exactly.
Okay, my dear students. So these goods should be categorized in the group of assets. And because these goods will provide benefit to our business within exactly, Arman said, by selling in future and present also. So the merchandise inventory which is still in our hand is our current asset. Is it clear? Should I move to next word? Should I move to next item? The next item is store supplies, office supplies, shop supplies. There are three words. Number one, store supplies. Number two is office supplies. Number three is shop supplies. मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कहीं कहीं हम बोर भी होते हैं, और इसलिए होते हैं कि कुछ चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग, दोज स्टूडेंट्स हु हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप कर रहा हूँ, डोंट वरी। और स्पीड अप करने में तभी अच्छा होगा जब मेरे स्टूडेंट्स को समझ आ रहा हो। अच्छा शीजा सर, आपसे मुझे एक शिकवा है, आप अपनी फर्स्ट क्लास में प्रेजेंट थी वर्चुअली, बट मेंटली और फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं थी उस क्लास में। मैंने आपको नंबर ऑफ टाइम्स रिक्वेस्ट की कि आप उस क्लास को लीव करें, सर फैजान ने रिक्वेस्ट की, बट आप उस क्लास को लीव नहीं कर रही थी क्योंकि आप मौजूद नहीं थी क्लास में। तो मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स जो कि इस क्लास में मौजूद हैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे बड़े अदब से कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने आप को लॉग इन करके चीजों को छोड़ मत दिया करें, क्लास में रहा करें, टीचर की बात सुना करें, और अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो इन्फॉर्म किया करें, ठीक है? चलें, तो अब शीजा अजहर ने एक क्वेश्चन किया, सर ये एंडिंग क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश की, नहीं मेरा बच्चा तो नहीं जाना ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे। आपने अगर आपने जाना है ना शीजा, तो आप लॉग ऑफ करके चली जाती, लॉग आउट कर लेती, क्लास को लीव कर लेती मेरा बेटा, ठीक है? क्योंकि देखें, अगर प्रिंसिपल भी आएंगे और अगर वो आपसे बात करेंगी, हमारी वाइस प्रिंसिपल आएंगी, तो वो कहेंगी शीजा अजहर इज प्रेजेंट इन द क्लास, नो वन इज देयर, टीचर इज नॉट देयर इन द क्लास, सो बैड इंप्रेशन जाएगा ना मेरा बेटा, तो प्लीज। अच्छा, अब देखें, शीजा अजहर सेड सर व्हाई देयर इज वर्ड रिटन एंडिंग। तो मेरा बेटा एंडिंग इसलिए कि हम ये मर्चेंडाइज इन्वेंटरी जिसको हम एसेट कह रहे हैं, ये ईयर किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमारे पास मौजूद होती है ना, और मेरे प्यारे बच्चों ने तो मुझे 1 ईयर कह दिया। Why you guys are trying to unmute yourself? Do you have any question? Okay, Ravia. So my dear students, जी शुएब साहब मैं क्वेश्चन लेता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। Ravia, please unmute yourself. Ravia Humair, please unmute yourself. Yes, sir. Okay. तो मुझे नेक्स्ट आईडी जो है राविया की, उसे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, मेरा ख्याल है राविया सेकंड आईडी रिमूव हो गई है ऑटोमेटिकली। ठीक है मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। ओके मेरा बच्चा, ठीक है मोहम्मद शुएब साहब, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया। ओके, थैंक यू राविया,
Thank you. Huzaifa Adnan, why your mic is unmute? Huzaifa Adnan. Okay. So my dear students, एंडिंग का वर्ड इसलिए लिखा हुआ है, एंडिंग का वर्ड इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये गुड्स हमारे पास किसी पर्टिकुलर पीरियड एंड पर, दैट इज माइट बी पॉसिबल एट मंथ एंड, एट क्वार्टर एंड, एट सेमी एनुअली और ईयर एंड पर मौजूद हैं। जी हफ्सा, बिल्कुल। अच्छा, अब मैं मजीद आगे बढ़ता हूं और आपसे डिस्कस करूंगा जनाब अली। हम बस मैंने सिर्फ इतनी सी बात कही है कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो ईयर एंड पर मौजूद होती हैं वो हमारा एसेट इसलिए है क्योंकि अब हम उन्हें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में सेल आउट करेंगे और वो हमारे बिजनेस को प्रोवाइड करेंगी बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो ये गुड्स हमने जनरली कब परचेज की होती हैं? ये हमने दिसंबर के मंथ में परचेज की होती हैं और हमें ये लगता है कि हम इस दिसंबर के एंड तक इसे अगर नहीं बेच सके तो सो वी आर गोइंग टू सेल इट इंशाल्लाह इन 2020 जनवरी, फेब और मार्च मंथ। Okay, yes, exactly. So these goods are assets and are called current assets. My dear student, store supplies, office supplies, shop supplies, three words have same meaning. Supplies are basically stationery and the items which we normally use in our business within 1 year. देखिए, आप सप्लाईज की डेफिनेशन ढूंढने की कोशिश कर लीजिएगा, अगर आपको कहीं मिल जाए तो मुझे भी बता दीजिएगा। सप्लाईज की जनरल डेफिनेशन ये दी जाती है, प्यारे बच्चों आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं ना, सप्लाईज की जनरल डेफिनेशन ये दी जाती है कि वो चीजें जो बिजनेस में विद इन 1 ईयर यूज करके बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब सर क्या चीजें होती हैं? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू आस्क मी सर व्हाट आर दीज थिंग्स। तो मैं बता रहा हूं कि ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी, मसलन ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले पेन, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले रजिस्टर्स, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर में लगने वाले पेजेस, स्टेपलर मशीन की पेन्स, इसी तरह प्रिंटर के कार्ट्रिजेस, ऑल दीज, कंप्यूटर्स नहीं बची, हाँ कंप्यूटर्स तो फिर ऑफिस इक्विपमेंट है, कंप्यूटर से बेनिफिट मिलता है बिजनेस को मोर देन 1 ईयर। ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन कंप्यूटर जो प्रिंटर में लगने वाले पेजेस हैं वो आमतौर पर हम मोर देन 1 ईयर यूज नहीं करते, हम ब्लैंक पेजेस परचेज करते हैं और जैसे ही हम उसे यूज कर लेते हैं हम कहते हैं उसका बेनिफिट हमें मिल गया। जी अरमान, डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट लेटर इंशाल्लाह। ओके, Sayyida Amal Asim Zadi said, sir, when the remaining stock would be sold in the new accounting period, would the cost of production of those goods be included in the new accounting period? Yes, exactly. Cost of production का word use ना करें, बल्कि cost of purchase का word use करें, that is best, because क्योंकि हम तो प्रोडक्ट बना नहीं रहे ना, बल्कि हम परचेज करके उसे सेल आउट कर रहे हैं। अच्छा, और क्यों होगी शामिल? क्योंकि हम अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अमल आगे इंशाल्लाह। इफ यू हैव अकाउंटिंग बैकग्राउंड देन डेफिनेटली यू नो दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग प्रिंसिपल, and what matching principle said, inshallah I will explain it later. Okay my dear, so office supplies, store supplies, shop supplies are stationary items which we use in our business. When we use these items in a store are called store supplies. When we use these stationary items in our office, these are called office supplies. And when we use these stationary items in a shop, called shop supplies. And when we use these stationary items in factory, then it is called मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज भी कह सकते हैं अरमान, और फैक्ट्री सप्लाईज। एग्जैक्टली, नहीं इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट नहीं मायरा नसीम, फैक्ट्री सप्लाईज। ठीक है जी, बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूं, बट आई होप कि आप मेरे साथ क्लास में मौजूद हैं सब लोग।
ठीक है, अच्छा देखिए मैं कह रहा हूँ सप्लाईज की बहुत सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ से, क्योंकि इफ यू आर गोइंग टू सर्च इट ऑन गूगल ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म यू विल नॉट get any particular definition of supplies. Supplies are basically those items which we use in our business within 1 year. So what are these items? These items maybe include stationery which we use in our business to operate it. अगर आपकी एक कंप्यूटर की शॉप है तो क्या आप बिल बुक नहीं परचेज करेंगे? क्या आप बिल बुक प्रिंट नहीं करवाएंगे? क्या आप पेन पेंसिल नहीं खरीदेंगे? क्या आप अपने प्रिंटर में लगाने के लिए पेजेस नहीं परचेज करेंगे? डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बाय ऑल दीज आइटम्स. For running a business smoothly you should have stationary items in your office. So these stationary items are called supplies, and when you use these supplies in your office, called office supplies. When you use these supplies item in a store, these are called store supplies. And when you use these items in a shop, if you are operating a shop, these items are called shop supplies. Necessary items are called supplies. बिल्कुल साहिल कहते हैं necessary items are called supplies. ठीक है, इंतहाई माजरत के साथ अब मैं अगर एक ही बात को 10 टाइम्स रिपीट करूंगा तो फिर मेरा लेक्चर बिल्कुल रह जाएगा. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग अब मेरे लेक्चर को, क्योंकि मैं डेली अल्हम्दुलिल्लाह अपने लेक्चर को अपलोड करता हूं, आप लेक्चर को प्लीज देख लीजिएगा. तो शॉप सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज एंड स्टोर सप्लाईज आर द आइटम्स विच वी यूज इन आवर बिजनेस नॉर्मली विद इन. मोहम्मद मशहूद खान ने बहुत ही मासूमाना सा सवाल किया, सर अगर वो सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर में मेंटेन करे तो बिल बुक की तो जरूरत ही नहीं है. मेरा बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में मेंटेन नहीं होते, फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक आपको पता है मशीन है, और जब वो मशीन खराब हो जाएगी तो आपके सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएंगे, आप जीरो पे आ जाएंगे. तो आप अपने पास फिजिकली रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करते हैं. ठीक है, आई होप आपने मेरी बात को समझ लिया. बहुत शुक्रिया मशहूद साहब, थैंक यू. मैं आपकी हा का मतलब भी समझ गया. ओके, सो these items will be used within 1 year. अब मेरे सवाल का जवाब देंगे सब. अच्छा, अक्सा ने 2 बार सवाल पूछा है, इंतहाई माजरत अक्सा, मैं पहली बार आपका सवाल पढ़ लिया था, लेकिन इतने ज्यादा रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं कि मैं जो है आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सका. अगर कोई बहुत छोटे अमाउंट में लाइक 1-2 चीजें खरीदी हो तो वो भी करंट एसेट में शामिल होंगे, एक्सपेंस नहीं. डेफिनेटली बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप, ठीक है. और हम इसको कहते हैं अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट, उसका नाम है मटीरियलिटी. सही है, पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अक्सा. अगर आपने अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है तो डेफिनेटली आप ये जानती हैं कि अकाउंटिंग का एक कॉन्सेप्ट है नेम्ड मटीरियलिटी. If an amount has no material effect on the decision maker's decision, तो आप उसे एक्सपेंस कह सकती हैं. तो ये मैं आगे पढ़ाऊंगा. तो आप लोग बहुत माशाल्लाह चैंपियन बच्चे हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है. अभी फिलहाल हम इसी बात को फोकस करते हैं कि ये ऑफिस सप्लाईज चलें. एक काम कीजिए, हुजैफा अदनान नहीं, जहरा रिजवी, सैयदा जहरा रिजवी, प्लीज अनम्यूट कीजिए. जहरा रिजवी, प्लीज अनम्यूट योर माइक. यस सर. जहरा, मुझे बताइए, जब हम ऑफिस सप्लाईज परचेज करके लाते हैं तो हम उन ऑफिस सप्लाईज को क्या फौरन यूज कर लिया, परचेज करते ही यूज कर लिया? नो सर, डिपेंड्स ऑन आवर नीड्स. अच्छा, चले मुझे ये बताएं, जैसे आप अपने घर के लिए भी चीजें खरीद के लाती हैं ना, आप अपने घर में जो चीजें यूज करते हैं तो फौरन लाते ही तो इस्तेमाल नहीं होती, जनरली 1 दिन 2 दिन 3 दिन आफ्टर 1 वीक इस तरह से यूज कर रहे होते हैं. यस. अच्छा, तो बिजनेस में व्हेन वी परचेज स्टेशनरी आइटम्स, तो क्या हम 1 दिन के स्टेशनरी आइटम्स परचेज करते होंगे? नो, फॉर द होल मंथ. हाँ, यानी इट डिपेंड्स. हम हो सकता है हमें लगता हो कि भाई हमारा बिजनेस तो बहुत ज्यादा चलता है तो 2-3 मंथ्स का सामान खरीद लो, क्या ख्याल है? लेकिन इट नेवर मीन्स कि आप
नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए जो स्टेशनरी ऑफिस में इस्तेमाल होनी है वो ला के रख लें। आपको स्टेशनरी का बिजनेस थोड़ी करते हैं, ठीक है, Yes. स्टेशनरी तो आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो मुझे ये बताइए सैयदा जहरा रिजवी कि जब हम स्टेशनरी आइटम्स परचेज करते हैं तो अभी हम इमीडिएटली तो उन्हें यूज नहीं करते। we are going to use it in near future, that is after 1 day, 2 day, 3 day, after a month, within a month. So these supplies, these items are going to provide Benefit in benefit the future. benefit to our, Business. so supplies should be categorized in the group of As current assets. first assets. Assets, then current assets. And because, and why it is current asset? Because these supplies are going to provide benefit to our business within Within one accounting period. within one accounting period, within 1 year. Excellent मेरा बेटा, खुश रहिए. Thank you so much. Thank you. Afsal asset and use the stuff which we need on daily or weekly basis. बिल्कुल, उसे भी हम परचेज करके लाते हैं बल्क में. हफ्सा, उसे भी हम बल्क में परचेज करके लाते हैं. तलाल बिन आमिर, पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करें. मुझे आइडिया है बहुत अच्छे से कि आप में से बहुत सारे लोगों के अकाउंटिंग बैकग्राउंड हैं. अगर आप मुझे मुस्तकिल इस तरह से मैसेज करेंगे तो फिर इट इज माइट बी पॉसिबल कि मुझे डेलिबरेटली इंटेंशनली इग्नोर करना पड़े मैसेज. मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप में से अकाउंटिंग के बैकग्राउंड है स्टूडेंट के. अब मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट सुन लें, उसके बाद अगर आपको तशफ़ी और इफादा और यूटिलिटी हासिल हो जाए तो खुश हो जाइएगा, ठीक है. हाँ एग्जैक्टली अफसा, हम नॉर्मली बाय करते हैं दीज स्टफ इन बल्क क्वांटिटी. देखिए ना, मैं इतनी सिंपल बात कह रहा हूं, आप अपने ऑफिस के लिए जो प्रिंटर के पेजेस लाएंगी तो क्या खुदा ना खास्ता आपके 10 पेजेस परचेस करके ले आएंगी? नहीं भाई, आप एक पूरा रेम या एक पूरा बंडल परचेस करके लाएंगे. एंड दैट बंडल, दैट रेम इज नॉट गोइंग टू यूज विद इन 1 to 2-3 days. एक 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 बॉक्स के अंदर तकरीबन 5 to 6 जो है वो बंडल होते हैं पेजेस के. तो और एक बंडल के अंदर तकरीबन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 300 to 400 पेजेस होते हैं. चलें अगर मैं ये गलत भी कह रहा हूं तो एज्यूम कर लेते हैं कि बस इसके करीब होते हैं. तो दोस पेजेस आर गोइंग टू प्रोवाइड बेनिफिट, ठीक है. अब लेकिन इसका ये मतलब अफसा बिल्कुल नहीं है कि दोस पेजेस आर गोइंग टू प्रोवाइड बेनिफिट मोर देन 2, 3, 4, 5 years, मोर देन 1 year. हम जरूरत के तहत लाते हैं. हमें पता है कि ये स्टेशनरी हम 2, 3, 4 months में यूज कर लेंगे, इट्स इनफ. इससे ज्यादा पैसा स्टेशनरी में स्टक. देखें एक बात बताएं हफ्सा, आप जरा प्लीज अनम्यूट करें. यस सर. मुझे ये बताएं कि आपका बिजनेस है कंप्यूटर्स का, राइट? बिजनेस किसका है? कंप्यूटर. तो आप बताएं, आप कंप्यूटर्स ला के ज्यादा रखना पसंद करेंगी अपनी शॉप में या स्टेशनरी आइटम्स? कंप्यूटर्स. Exactly. You would like to invest more amount in the merchandise, in the goods. जिसके लिए आप बिजनेस कर रहे हैं वो सामान ज्यादा होना चाहिए शॉप में. आप कस्टमर को ये थोड़ी कहेंगे अभी कंप्यूटर खत्म हो गया, स्टेशनरी रखी है मेरे पास बहुत सारी, स्टेशनरी ले जाइए आप. ऐसा ही है ना मेरा बेटा? आई होप आपको मेरा पॉइंट अच्छे से समझ आ गया. चलें, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास को ये क्लियर है कि ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज एंड स्टोर सप्लाईज आर आवर एसेट एंड इट इज करंट एसेट. ओके, अगर सब समझ गए तो अब अगली बात इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यहां से एकदम जंप करने जा रहा हूं एसेट से एक दूसरे हेड पर. मुझे ये बताइए, जब हम इन ऑफिस सप्लाईज को यूज कर लेंगे, जब ये सप्लाईज बेनिफिट पहुंचा देंगी, जब हम इन सप्लाईज को कंप्लीटली यूज कर लेंगे तो फिर क्या ये हमारा एसेट रहेंगी? जी बिल्कुल सही. अरीबा, मशहूद, वजीहा, जहरा. अच्छा ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बोलते नहीं है ना, तो अभी चेक करते हैं. टाइम टू
mark your attendance. Abdul Mois, Abiha Abir, Abir Naeem, Eman Khan, Ali Mohammed, Aksa Khwaja, Ariba, Arifa Ali, Arman, Ayan Ali, Aisha Abdul Ghaffar, फलक विकार। अच्छा, इसका मतलब है आयशा अब्दुल गफार क्लास में नहीं है। ओके, क्लास में रहा करें बेटा, इमीडिएट रिप्लाई होना चाहिए। फातिमा जहरा, हफ्सा, हमना आरिफ, हुजैफा अदनान, इलियान, करीम, माहम नदीम, महक आदिल, महनूर खान, मायरा नसीम, मनाहिल जहरा, मोहम्मद शहीर, मोहम्मद शुएब, मोहम्मद मशहूद, मोहम्मद रोहान, मोहम्मद तहा, नूरुलैन, राविया हुमैर, रिजा अली, साहिल, समर, शाज, शीजा अजहर, सैयद अब्दुल्ला, सैयदा अमल आसिम, सैयदा मनाहिल आसिम, सैयदा जहरा रिजवी, तहा नईम, तलाल बिन आमिर, वजीहा नदीम, वलीजा हैदर, ज़हरा कैसर। तो जब सब बच्चे अपने अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं, इसका मतलब है कोई भी नहीं सो रहा। जब सब नहीं सो रहे तो सबको रिप्लाई करना चाहिए ना प्यारे बच्चों। मैंने पूछा, ये ऑफिस सप्लाईज, स्टोर सप्लाईज, शॉप सप्लाईज हमारा एसेट हैं, क्योंकि हम इनको यूज करके बेनिफिट हासिल करेंगे। तो जब हम इन्हें यूज कर लेंगे तो क्या फिर ये हमारा एसेट रहेगा? थैंक यू ज़हरा, थैंक यू सो मच। सब रिप्लाई किया करें, ये तरीका है। नूरुलैन, कैसे एसेट रहेगा मेरा बेटा जब हम इसे यूज कर लेंगे? एसेट की तो डेफिनेशन ये है कि दोज थिंग्स which will provide benefit to us in operating our business। तो जब हमने इसे यूज कर लिया तो अब ये एसेट कैसे रहा मेरा बेटा? ठीक है नूरुलैन, गॉट माई पॉइंट? नूरुलैन, आर यू देयर? ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम इसे यूज कर लेंगे तो अब आप सोचो, आपने किसी चीज से बेनिफिट हासिल कर लिया, तो अब आपके ख्याल में एक आम इंसान और आपके अंदाज में फर्क है। अब वो अंदाज समझना है सब बच्चों ने, बड़ी तवज्जो से, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं जी, सब सुनेंगे। पर सर उससे जो पैसे आएंगे वो एसेट होंगे क्या? नहीं मेरा बेटा, पैसे थोड़ी आएंगे, स्टेशनरी से पैसे थोड़ी आते हैं। स्टेशनरी को तो आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने में यूज करते हैं, आप स्टेशनरी को बेच थोड़ी रही हैं मेरा बेटा। स्टेशनरी को तो आप यूज कर रही हैं ना, स्टेशनरी तो आपके बिजनेस को बेनिफिट पहुंचा रही है। फलक, आगे बढ़ो, बात समझ आई? जब आप स्टेशनरी को यूज कर रही हैं, दैट मीन्स स्टेशनरी इज अ रिसोर्स, और जब आप उसे यूज कर लोगी तो क्या आयशा अब वो रिसोर्स रही? एक्सीलेंट एमन, बड़ी जबरदस्त बातें लिखी हैं आपने माशाल्लाह। भाई पैसे से आपने लिया था, यूटिलिटी भी हासिल कर ली, तो अब इट्स नॉट एसेट एनीमोर। अब ये एसेट नहीं है, तो फिर ये कौन से रूम में चला गया? अब हम, यस, बिकॉज वी हैव कंज्यूम्ड इट। एक्सीलेंट, जब आपने इसे कंज्यूम कर लिया तो अब आसान उर्दू में बोलूं, अब हम मनाएंगे गम। क्या बोला? अब हम मनाएंगे गम। है सर, ये कौन सी अकाउंटिंग पढ़ा रहे हैं आप? गम, यानी हम कहेंगे हाय हो गया हमारा खर्चा। क्या बोलेंगे? हाय हो गया हमारा खर्चा। क्यों? क्योंकि हमने उस चीज को कर लिया इस्तेमाल।
जब किसी चीज का बेनिफिट मिल जाए तो फिर वो हमारा एसेट रहती नहीं है, बल्कि वो बन जाती है हमारा एक्सपेंस। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अकाउंटिंग के कितने हेड बताए थे? जल्दी से बताओ, शाबाश। अकाउंटिंग के कितने हेड बताए थे? बीमारी का नाम क्या था? बीमारी का नाम क्या था? अजराए मजाक, अजराए मजाक बीमारी का नाम था अल्सर। वेरी गुड, माशाल्लाह, जिंदा है मेरे बच्चे, जिंदा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, खुश रहिए, खुश रहिए। अल्सर, अरे भैया अल्सर की स्पेलिंग सही लिखो, ये यू से कैसे शुरू हो गया? ALCER। नहीं महक आदिल, 5 ही बताए थे, 6 पता नहीं कब पता चल गया मेरा बेटा आपको। अल्सर, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। स्क्रीन शेयर कर ली मैंने, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कभी कभी थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो जाती है, उन्हें याद आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद आ गया, तो वापस आ जाता हूं। इसका मतलब है ऑफिस सप्लाईज जब हम परचेज करके लाएं तो वो हमारा एसेट, और जब हम उसे कर लें यूज तो वो बन गया हमारा। हाँ, साइंस में ऐसे ही लिखा जाता है। मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा ना गलती से अक्सा, ना मैं पढ़ा सकता हूँ साइंस। तो ये देख लो गौर से क्या लिखा हुआ है, नजर आया क्या लिखा है? एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ गया जी। आफ्टर यूजिंग इट, सही है। अब इसको और सिंप्लीफाई करता हूं ना, विद द हेल्प ऑफ अमाउंट। हम 10,000 रुपीज की स्टेशनरी खरीद के लाए थे। आप मेरे साथ हैं? आर यू देयर? ओके। हम 10,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज करके लाए थे। ईयर एंड तक हमने 6,000 की स्टेशनरी कंप्लीटली यूज कर ली। जब हम 10,000 की स्टेशनरी परचेज करके लाए थे, हमने उसे अपना क्या कहा होगा? हमने उसे किस ग्रुप से बिलोंग करवाया होगा? एग्जैक्टली हमने पूरे 10,000 को कहा होगा अपना। बस हेड का नाम ले लीजिए, इसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमने उसे कहा होगा अपना एसेट। But at year end, when we check that how much amount of supplies have left, तो हम देखते हैं कि भाई 4,000 रुपीज की बची हुई हैं। नहीं फातिमा, डेप्रिसिएशन नॉन करंट एसेट पर होता है। फास्ट ट्रैक पे नहीं जाना, आपने मेरे साथ चलना है कदम से कदम मिला के, सही है। ऑफिस सप्लाईज 10,000 की परचेज की, 4,000 की ईयर एंड पर बची हुई हैं, तो 6,000 की कहां चली गई भाई? 6,000 की ऑफिस सप्लाईज को क्या कर लिया? मीटिंग खत्म होते ही आपने दोबारा इसी लिंक पर आना है। एग्जैक्टली सही है, मीटिंग खत्म होते ही इसी लिंक पर आना है, फौरन, इमीडिएटली जी। यूटिलाइज कर लिया तो वो क्या बन गया हमारा? जब हमने किसी चीज का बेनिफिट हासिल कर लिया तो वो अब बन गया हमारा एक्सपेंस। हम कहेंगे अब, यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्या आपको समझ आया कि ऑफिस सप्लाईज जब हम परचेज करके लाएं, बिफोर यूजिंग इट, बिफोर टेकिंग बेनिफिट, it is our asset, and when after using it, it is no more our asset, it is converted into expense। expense यानी उसने हमें फायदा पहुंचा दिया। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखें, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होगी तो चीजें फिर क्लियर नहीं होंगी ना। मैं एक बार डेफिनेशन याद दिला दूं, हो सकता है मेरे किसी प्यारे बच्चे को डेफिनेशन याद ना हो। एक्सपेंस आर द कॉस्ट ऑफ goods and services used up in the process of earning revenue. It means and cost of employees salaries and expenses are also called cost of doing business। तो भाई आप जब बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो वहां आपको स्टेशनरी परचेज करके उसे यूज करना पड़ता है। जी तहा नईम साहब, आपका मैसेज बिल्कुल मुझे नजर आ गया, और आपने लिखा यू आर यू एबल टू रीड चैट। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका मैसेज मुझे नजर आ गया। तो आई होप अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हैं, सबको ये बात समझ आ गई कि ऑफिस सप्लाईज, सिर्फ ऑफिस सप्लाईज जब लिखा होगा तो वो हमारा क्या है? बोलो जल्दी से, शाबाश जी। शास बोलिए, प्रॉब्लम बताइए, अनम्यूट करें और प्रॉब्लम बताएं। शाबाश शाज, अनम्यूट कीजिए प्लीज।
थैंक यू सो मच, आप सबने जवाब लिख के भेजा। शाह आपको मैंने अर्ज किया अनम्यूट कीजिए और प्रॉब्लम शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ऑफिस सप्लाईज हमारा एसेट होती हैं, बट जब हम इसे यूज कर लेते हैं तो ये हमारा एसेट नहीं रहती, बल्कि ये बन जाती है हमारा एक्सपेंस। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। शाज आर यू देयर? अगर आप अनम्यूट नहीं कर रही तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो माइक वर्किंग नहीं कर रहा तो ये आपका प्रॉब्लम है। मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ 10 बार, अपने गैजेट्स को रेडी रखें। अगर किसी दिन मेरा माइक वर्क ना करे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा क्लास को? जी फातिमा, क्या क्वेश्चन है आपका? सॉरी मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ा। आपने कोई क्वेश्चन किया था? अगर इसी चैट में है तो मैं चेक कर लेता हूं। फातिमा, इस चैट में तो आपका कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा मुझे। हो सकता है कि लास्ट मीटिंग में आपने क्वेश्चन किया हो। अच्छा, ईमेल वाला डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली आफ्टर जुमा प्रेयर्स मैं आपको आपका रिप्लाई कर दूंगा ईमेल का। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब क्लियर हैं। अब आ जाते हैं वर्ड सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। सर ये क्या चीज आ गई अचानक? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब टेंशन लेने का वक्त गया। अब अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। अब अप्रोच हर स्टूडेंट की ये होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चीजें आती हैं, मुझे अकाउंटिंग समझ आ रही है, ये अप्रोच होनी चाहिए। अप्रोच अगर ये होगी, ये तो बड़ी मुश्किल होती है, ये तो समझ ही नहीं आती क्या है, तो फिर आती हुई चीजें भी समझ नहीं आती इंसान को। ठीक है, आइए मैं याद दिलाता हूं आपको। क्या आपको ये कमीशन रिसीवेबल याद है? सर्विस बिजनेस में होता है ना? याद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह कोई भी बिजनेस जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर चुका है। यस एग्जैक्टली, इफ यू हैव गिवन सर्विस ऑन क्रेडिट। हफ्सा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया जो आपने लिखा है। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो एक मैकेनिक शॉप, एक जनाब हम कह लेते हैं किसी, हम जाते हैं ना गाड़ियों के शोरूम्स पर जाते हैं और वहाँ पे गाड़ियों के शोरूम पे गाड़ियाँ भी परचेज और सेल होती हैं, और इसके अलावा वो सर्विसेज भी देते हैं, हमारी गाड़ियों को रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज देते हैं। तो जब वो सर्विसेज हमें दे दें और हम इमीडिएटली पे ना करें तो फिर इसका मतलब है वो अपने पास लिखेंगे अपने बिजनेस में सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। वो सर्विसेज दे चुके हैं बट उन्हें उनके पैसे अभी मिले नहीं हैं। बिजनेस दैट हैज प्रोवाइड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, वो अपने पास लिखता है revenue on credit received for providing service। तहानीम अनम्यूट कीजिए, तहानीम अनम्यूट कीजिए। यस सर। अब बोलिए क्या लिखना चाह रहे हैं आप? शाबाश, आपने जो लिखा है थोड़ा सा उसको क्लियर करें। बिल्कुल एमन कर देते हैं। सर वो रेवेन्यू जो हमें क्रेडिट पे मिले फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं वो रेवेन्यू जो हमें क्रेडिट पे मिले फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। अब मेरी बात सुने और अपनी बात को इससे मैच करें जो मैं कह रहा हूं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूं कि हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक है? तो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो इसका मतलब है किस पर की हैं? दो ही तरीके हैं जनरली। नंबर 1 इज ऑन कैश एंड नंबर 2 इज ऑन क्रेडिट। अब अगर हमने कैश पे सर्विसेज प्रोवाइड की होती था तो डेफिनेटली हम कहते कैश आ गया और ये पैसा हमारी इनकम है। बट हमने सर्विसेज प्रोवाइड तो कर दी, हम सर्विसेज रेंडर्ड तो कर चुके हैं, बट अभी हमें अमाउंट मिली नहीं है। हमने सर्विसेज दे दी लेकिन हमने बिल बना के भेज दिया पार्टी को कि हमने आपको 10,000 रुपीज की सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, बट पार्टी ने अभी तक हमें पेमेंट, कस्टमर ने अभी तक हमें पेमेंट नहीं की। तो अब हम कहेंगे ये जो सर्विसेज की अमाउंट है ये हमारे लिए क्या है? ये सर्विसेज की अमाउंट हमारे पास लेने का राइट है। तो इस राइट का नाम है सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल। बिल्कुल वैसे ही जैसे कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल कहाँ होता था? जहां हम गुड्स सोल्ड करते थे। अब थोड़ा सा क्लियर है? था आपकी बात मैं गलत बिल्कुल भी नहीं कह रहा, लेकिन वो आपका पर्सपेक्टिव था। मैंने अपना पर्सपेक्टिव आपको समझा दिया और मेरा ख्याल है अब आप मजीद क्लियर हो गए हैं।
यस सर। ओके, थैंक यू सो मच बेटा, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है अभी तक? अच्छा, एमन ने कहा था सर प्लीज रिपीट कर दें। बेटा क्या रिपीट करो मेरे बच्चे, जल्दी से एमन अनम्यूट करके बताओ फटाफट, तेजी से। एमन जल्दी से अनम्यूट करके बताओ बेटा क्या क्वेश्चन है, डिफरेंस क्या होगा कमीशन और सर्विस रेवेन्यू में। देखें, मुझे आ गया समझ। अच्छा आ गया है, ओके वेरी गुड। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात, वरना मैं वैसे ही कह देता हूँ वन लाइन स्टेटमेंट। सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, कोई भी बिजनेस, जरूरी नहीं है कि हम कमीशन रिसीवेबल का वर्ड यूज करें। बहुत सारे बिजनेसेस में सर्विस रेवेन्यू, जहां सर्विसेज दी जाती हैं, तो कमीशन रिसीवेबल भी सर्विस ही दी जाती है। यहाँ पे हम किसी कस्टमर को ले जाके घर दिखाते हैं, उसको कहते हैं ये, फिर डीलिंग कराते हैं उसकी पार्टी से, तो वहां पे हम अपनी इनकम का नाम एक पर्टिकुलर इनकम रख देते हैं, दैट इज कमीशन, तो कमीशन रिसीवेबल कह देते हैं। बट जहां इनकम का कोई पर्टिकुलर नाम ना हो, वहां हम कह देते हैं सर्विसेज। जैसे ब्यूटी पार्लर्स में सर्विसेज का वर्ड यूज किया जा सकता है ना, सैलून में सर्विसेज का वर्ड यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह आप मोबाइल शॉप पर जाती हैं, मोबाइल या फिर किसी मोबाइल कंपनी के आउटलेट पर जाती हैं और वहां अपना मोबाइल रिपेयर होने के लिए देती हैं, इसी तरह करीम भी सर्विसेज देता है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सर्विस ही वर्ड हो, बिजनेस डिसाइड कर सकता है कि वो किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, अल्हम्दुलिल्लाह माय स्टूडेंट्स आर गिविंग एग्जांपल लाइक करीम, लाइक फूड पांडा, दे आर गिविंग सर्विसेज, ठीक है जी। मोहम्मद मशूद साहब क्या समझ में नहीं आया, अनम्यूट करें, आप क्लास में थे? जी सर, मैं क्लास में था। मुझे ये मतलब सर्विसेज, मतलब मुझे टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आई। टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई। देखें आप ना एक काम करें, सिर्फ इतना वर्ड पढ़ लें, सर्विसेज रिसीवेबल। जी सर। तो अब इसका मतलब ये हुआ सर्विसेज किसके एंड से, हम किसके एंड से बात करते हैं हमेशा, पहले ये बताएं मुझे, क्लियर करें। सोर्स प्रोप्राइटर के एंड से बात करते हैं, यानी हम अपने 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 बिजनेस एंटिटी, हमारे बिजनेस के लिहाज से बात करते हैं। इट मींस सर्विसेज रिसीवेबल कब होंगी, सर्विसेज के पैसे, इन टर्म्स ऑफ मनी बात हो रही है, सर्विसेज नहीं लेनी, सही है? जी सर, जी। अक्सर स्टूडेंट समझता है कि सर सर्विसेज लेनी है क्या, बिल्कुल भी नहीं मेरा बेटा। इसका मतलब है हमें सर्विसेज के अगेंस्ट अमाउंट कलेक्ट करनी है। तो हमें क्यों अमाउंट कलेक्ट करनी है? बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड सर्विसेज। किसको प्रोवाइड की सर्विसेज? कस्टमर को। और कस्टमर को जब सर्विसेज दे दी, दैट मीन्स हमारे पास एक राइट आ गया, किस बात का? पैसे कलेक्ट करने का। और वो राइट क्यों आया? क्या हमने कस्टमर को गुड्स दिए हैं मशहूद? नहीं सर, हम सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हम गुड्स देते तो ट्रेड रिसीवेबल होता, अगर उसने हमारी एक फ्लोर को रेंट पर लिया होता तो रेंट रिसीवेबल होता, अगर उसने रिटन प्रॉमिस किया होता तो बिल रिसीवेबल होता। लेकिन उसने हमसे सर्विसेज ली हैं। अब वो सर्विसेज में बेतहाशा सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, करीम कंपनी लोगों को सर्विसेज देती है तो वो अपने पास सर्विसेज इनकम लिख सकती है। फूड पांडा सर्विसेज देता है, वो सर्विस इनकम लिख सकता है। आप लोगों को मुख्तलिफ तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, तो आप सर्विस लिख सकते हैं। तो जब आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर दें तो वो सर्विसेज के अगेंस्ट एक अमाउंट कलेक्ट करने का राइट आपके पास आ जाता है, उसे कहते हैं सर्विस रेवेन्यू रिसीवेबल, यानी सर्विस की इनकम के पैसे लेने का राइट आ गया आपके पास। और हर राइट जिंदगी भर आपके पास रहता। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम बेटा, क्लियर हो गया ना? हर राइट आपके पास जिंदगी भर रहता, वो राइट आपके पास से कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कैश में। आई होप आपने मेरी बात को यकीनन अच्छे से ही समझा होगा। मशहूद ने तो एग्री किया, अल्लाह करे कि अच्छे से समझ आई हो बात। द नेक्स्ट वन, अच्छा कितना टाइम रह गया? आपकी क्लास कितने बजे? 11:45 पर है। ओके चलें, थैंक यू सो मच तलाल, थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिमाइंड करवाया। इंशाल्लाह बस ये एक दो टर्मिनोलॉजीज रह गई हैं, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे इसके लिए और कोशिश करेंगे, फिर बस आहिस्ता आहिस्ता स्पीड अप होंगे। ये चीज़ें बड़ी आसान है। मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा खुद भी इसको रिव्यू करें। मैं इसको अपलोड कर देता हूं आज या कल में इंशाल्लाह। ये किसको? चार्ट ऑफ अकाउंट, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स को अपलोड कर देता हूं,
ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सिर्फ एसेट्स को गो थ्रू करना है और किसी चीज को नहीं, समझ गए? सिर्फ बेटा किसको? एसेट्स को। मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। तारिक आजम मैं कर दूंगा, 9-10 के लेक्चर शेयर कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज ऑल। तारिक आजम बिल्कुल कोशिश करूंगा 9 और 10 के लेक्चर मैं देख लूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर।